پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مولا علی کی پوری کہانی بچپن سے لے کر شہادت تک۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی ہی دینی معلومات اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مولا علی علیہ السلام کی پیدائش، ان کا بچپن، ان کی زندگی کے کچھ واقعات، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو بڑا ہی اہم اور خاص ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھیں۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار، جس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں اگر کوئی شہنشاہ ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہیں، اللہ کا کوئی شیر ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اور جو کچھ طاقت ملی ہے غیبی خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اور پھر اگر دنیا میں کسی تلوار کی اگر شہرت ہے تو وہ مولا علی کی تلوار ذوالفقار کی شہرت ہے، اور جوانوں میں اگر کوئی جوان ہے تو حقیقت میں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کی ولادت بھی ایسی ہوئی، اللہ اکبر، پاکیزہ گھرانے میں، پاکیزہ خاندان میں، پاکیزہ نسب میں ہوئی۔ اللہ رب العزت کو ایسے منظور تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی ماں فاطمہ بنت اسد جب حمل سے تھیں، اس وقت یہ خانہ کعبہ کے طواف میں تھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں موجود ایک خاتون نے یہ روایت بیان کی کہ تمہارے دادا حضرت ابو طالب گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ ہم نے پوچھا کہ کس بات کی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی بنت اسد حاملہ تھی اور درد شروع ہو چکا ہے۔ تو ان کو بٹھانے کی کوشش کی گئی تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو انہیں اندر بٹھایا گیا کہ ہم جلدی کسی چیز کا انتظام کریں۔ تو خواتین کہتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں فاطمہ بنت اسد کو لے کر انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی مدد آ جائے اور فاطمہ بنت اسد کو اٹھا کر یہاں سے گھر لے جایا جائے۔ لیکن وہ خواتین کہتی ہیں کہ جیسے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں، ایک خوشبو سی پھیلی اور اچانک ایک حسین و جمیل بیٹا تولد ہوا۔ جب حضرت ابو طالب واپس آئے تو ولادت ہو چکی تھی، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر۔ بعض روایات کے مطابق مولا علی شیر خدا کی ولادت کسی اور گھر میں بتائی گئی ہے۔ خیر، ولادت جہاں پر بھی ہوئی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے اس روایت سے سب کا اتفاق ہے، یعنی سب یہ مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد نہ تو دودھ پی رہے تھے اور نہ ہی آنکھیں کھول رہے تھے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں کھولتا ہے، آواز نکالتا ہے اور اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ لیکن یہاں صبح سے شام ہونے کو آئی، لیکن مولا علی علیہ السلام اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول رہے تھے، لہٰذا سب لوگ گھبرا گئے، ماں بھی گھبرا گئیں اور والد حضرت ابو طالب بھی گھبرا گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے بعد خبر ہوئی کہ ابو طالب کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد نے دوسری ماں کی طرح میری پرورش کی۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ بنت اسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چاچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی تھیں، ان پر جان نچھاور کرتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی ولادت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چچا ابو طالب کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔
لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بیٹا تو ہوا ہے لیکن شاید معذور پیدا ہوا ہے، وہ آواز نہیں کرتا، روتا نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا اور دودھ بھی نہیں پی رہا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ بچہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنا لعاب پاک نکال کر مولا علی علیہ السلام کی زبان پر رکھا، تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر رکھی تو آپ علیہ السلام نے اسے چوسنا شروع کر دیا، اور لعاب پاک جب ان کے منہ میں گیا تو آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور سب سے پہلے جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام کی شان کہ پہلی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک اور پہلی نظر چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ایسی جگہ پہ ہوئی کہ جہاں پہ کسی اور کی کبھی ولادت ہوئی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہیں آنکھیں کھولتے تو کعبہ سامنے تھا۔ کعبے کا تقدس کم تھوڑی نہ ہے، کعبے کی حرمت کم تھوڑی نہ ہے، اس کی عزت کم تھوڑی نہ ہے۔ پیارے دوستو، آج بھی جب ہم کعبے پر پہلی نظر ڈال کر دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں وہیں کھل جاتی اور کعبے کو دیکھ لیتے تو وہ بھی ان کی عزت، ان کے تقدس، ان کے احترام میں یہ بات روایات میں آ جاتی کہ مولا علی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پہلی نگاہ کعبے پر پڑی، لیکن یہاں پر یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے پیدائش ہی میں ہمیں وہ بات کہہ دی کہ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا کہ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مولا علی علیہ السلام نے نظر وہاں ڈالی ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی نظر گئی، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ پیارے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا۔ یوں سمجھ لیں کہ مولا علی علیہ السلام کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کردار رہا۔ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو 3 سال گزرے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 سال کی تھی، تب مولا علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیارے دوستو، وہ علی جو خود تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے ہوئے ہوں، ان کی جوانی کا حال کیا ہوگا اوروں کے متعلق تو معلوم نہیں، باقی دوسرے اصحاب نے تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، لیکن مولا علی علیہ السلام کی صحابیت تو بچپن سے ہی تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچپن سے ہی صحابی تھے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے۔ آپ کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ہوئی تھی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ ساری برادری کو بلا کر لاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دین کے کام کے لیے نکلا۔ پھر آپ علیہ السلام بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد میں شہادت تک جناب علی علیہ السلام دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور مکہ والوں کو جمع کیا، مکہ کی ایک پہاڑی پر سب کو دعوت پیش کی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم لوگ بتوں کی عبادت کرنی چھوڑ دو۔ اس پیغام کو سن کر
مکہ والے بڑی دشمنی پر اتر آئے۔ ایک شخص بھی وہاں پر اٹھ کر لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع عام میں پکارا، ہے کوئی جو میرے لائے ہوئے دین کی حمایت کرے؟ لیکن سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے حامی نہیں بھری، جیسے سب کے منہ پر تالے لگ گئے۔ لیکن تبھی یہی 9 سال کی عمر میں مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں، آپ کو میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا، اس کے پیروں میں قوت اور طاقت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ تھی کہ پھر آپ کی قوت کے سامنے کسی کی قوت ہی نہیں تھی۔ جنہیں شیر خدا کا لقب ملا، حیدر قرار کا لقب ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ فیصلوں میں بھی بٹھایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کا تبلیغ اسلام میں بڑا ہی اہم کردار ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی آپ ہر طرح سے خبر پہنچایا کرتے تھے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو ہی اپنے بستر پر لٹایا تھا۔ وہ قتل کی رات تھی۔ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اعتراف میں سارے لوگ تلواریں تانے کھڑے ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کسی کو نظر نہ آ سکے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میرے بستر پر سو جانا، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، تم یہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دینا اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا۔ مولا علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی سوال نہیں کیا، جبکہ یہ ممکن تھا کہ غلطی سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر مولا علی علیہ السلام کو ہی قتل کر دیتے، کیونکہ وہ بستر قتل کا بستر بنا ہوا تھا۔ لیکن مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس رات بہت آرام کی نیند سویا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل صبح سب کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ صبح ضرور ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو صبح تو ہونی ہی ہے۔ آج کی رات فکر چھوڑ دو، موت کا خوف اور ڈر نکال دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل صبح امانتیں دے کر مدینے چلے آنا۔ پیارے دوستو، یہ تھا مولا علی علیہ السلام کا ایمان، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا۔ دوسرے دن کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کو بستر سے اٹھایا اور حرم کعبہ میں لے آئے، اور بہت سارے کافر جمع ہوئے۔ لیکن وہاں پہنچ کر مولا علی علیہ السلام نے سب کی امانتیں واپس کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 دن کے بعد مولا علی علیہ السلام بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد مولا علی علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے تو مدینے کے مہتم نام کے ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے گھر پر آپ کا قیام ہوا۔ جو بھی صحابی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی نہ کسی صحابی کے گھر ٹھہرا دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد عقد مؤاخات شروع ہوا۔ عقد مؤاخات اسلام میں ایک ایسی زبردست مثال ہے کہ آج تک دنیا میں ایسی دوسری مثال قائم نہیں ہوئی۔ عقد مؤاخات دراصل ایک ایسا کام تھا
जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अंसार सहाबा और मुहाजिरीन सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया कि आज से तुम दोनों भाई भाई हो। अंसार वो सहाबा थे जो मदीने में पहले से रह रहे थे, मुहाजिर वो सहाबा थे जो मक्का या दूसरी जगहों से हिजरत करके मदीना आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से तुम दोनों भाई भाई हो। एक अंसार सहाबा दूसरे मुहाजिर सहाबा का हाथ पकड़ते और अपने घर ले जाते और कहते कि आज से ये घर और घर का सारा सामान आधा आपका है और आधा हमारा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि आज से आप लोग भाई भाई हैं। प्यारे दोस्तों, वो लोग सिर्फ कहने के लिए भाई भाई नहीं थे, जैसे आजकल हम सिर्फ बोलने के लिए भाई भाई हैं कि जब काम पड़े तो कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, और जब दुश्मनी होती है तो इतनी खतरनाक दुश्मनी होती है कि माज़अल्लाह जानवरों से भी ज्यादा सख्त तरीन लड़ाइयाँ होती हैं। जानवर भी आपस में इतना नहीं लड़ते जितना इंसानों में आपस में खूरेजियाँ होती हैं। दूसरों से लड़ाई अल्लाह और उसके रसूल की वजह से है तो अलग मसला है, लेकिन मोमिनीन में आपस में एक दूसरे से लड़ना सख्त तरीन गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो मोमिनों ने आपस में लड़ने के लिए तलवारें उठा लीं, हालांकि आज तलवारें नहीं हैं, यूं कह सकते हैं कि अगर चाकू उठा लिया या गन उठा ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर इनमें से किसी एक ने दूसरे को मारा या कत्ल कर दिया तो कातिल भी दोज़ख में जाएगा और मख्तूल यानी जो मारा गया है वो भी दोज़ख में जाएगा। सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल का तो समझ में आता है कि उसने कत्ल किया, उसने किसी की जान ली, इसलिए दोज़ख में जाएगा, लेकिन मरने वाले का क्या कसूर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इसलिए दोज़ख में जाएगा कि मरने वाला भी इस बात का ख्वाहिशमंद था कि दूसरे को कत्ल कर दूं, लेकिन ये और बात है कि उसको मौका नहीं मिला। कत्ल तो ये भी करना चाहता था, अगर इसको मौका मिलता तो ये भी कत्ल कर देता, लेकिन मौका कातिल को मिला इसलिए उसने इसे मार दिया। इसलिए जो तलवार मुसलमानों के दरमियान उठी वो दोनों दोज़ख में जाएंगे। बहरहाल सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे के भाईचारे में जोड़ दिया। एक अंसार आते और एक मुहाजिर को अपने साथ अपने घर ले जाते। इस तरह सारे सहाबी एक एक करके अंसार के घर चले गए, लेकिन एक सहाबी रह गए और वो सहाबी थे मौला अली अलैहिस्सलाम। ये तन्हा रह गए क्योंकि इनका कोई अंसारी सहाबी जोड़ीदार मिला ही नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में बैठे। उनको थोड़ा सा दुख हुआ कि मेरा कोई अंसारी सहाबी नहीं है, अब मैं किसके घर जाऊंगा, अब मैं किसके घर रहूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ऐ अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अक़्द मुआख़ात में अपने साथ जोड़ लिया। सब मुहाजिरीन को एक एक अंसार सहाबी दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक मुहाजिर थे, हिजरत करके आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने साथ जोड़ लिया। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान है। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की दानाई का कोई जवाब नहीं था। एक मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, मेरा मुकाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स एक बार जाएगा लेकिन मेरे पास 2 बार आएगा। सुनने वालों को ये बात कुछ अजीब लगी। उनको लगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मर्तबा बढ़ाकर बयान कर रहे हैं। लिहाजा लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम की शिकायत कर दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ये कहते हैं
کہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स एक बार जाएगा लेकिन मेरे पास 2 बार आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ अली, क्या तुमने ऐसा कहा था? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी हदीस की वजह से ऐसा कहा था। आपने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, तो कोई भी जाने वाला दरवाजे से जाता है और दरवाजे से ही बाहर आता है, एक बार दाखिल होता है और एक बार उसी दरवाजे से बाहर निकलता है। बस यही सोचकर मैंने ऐसा कहा था। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी ही हिकमत और जहानत से नवाजा था। इल्म में आपका कोई सानी नहीं था। यहाँ तक कि सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं उस मजलिस से पनाह मांगता हूँ जिसमें अली ना हो, बल्कि ये भी दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, कभी ऐसा वक्त ना आए कि मुझे अली के बगैर कोई फैसला करना पड़ जाए। बल्कि ये भी फरमाते थे कि अगर अली ना हो तो मैं हलाक हो जाऊंगा। कई मामलों में मौला अली अलैहिस्सलाम इन तीनों खुलफाए राशिदीन के हामी और नासिर रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हजरत उमर की भी और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी इन तीनों खुलफा के साथ हिमायत भी की है और उनकी वजारत भी की। उनके साथ जिहाद में भी शरीक रहे। इन खुलफा के दौरे खिलाफत में आप अलैहिस्सलाम ने कई जंगें भी लड़ी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी, हज़रत उमर के ज़माने में भी और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूरा किरदार उसी तरह से निभाया जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया करते थे। कहीं से कोई इख्तिलाफ नज़र नहीं आता। प्यारे दोस्तों, एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल पूछा कि आपने कभी खुदा को देखा है? दोस्तों, एक होता है ज़ाहिरी तौर पर देखना और एक है ख्वाब में देखना, बंद आंखों से देखना। आलम बेदारी में सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को खुदा की ज़ियारत नहीं हो सकती। मेराज का जो वाक़या हुआ, ऐसा वाक़या फिर किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन आलम ख्वाब हो या बंद आंखों से हो, बेशुमार औलियाए कामिलीन ने रब्बे जुल जलाल की ज़ियारत की है, अल्लाह ताला की तजल्लियों को देखा है। बहरहाल, जब मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने खुदा को देखा है, तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा कि तुम खुदा को देखने की बात करते हो। अली उस वक्त तक नमाज का दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में खुदा की ज़ियारत नहीं कर लेता। रब तबारक ताला की तजल्लियां जब तक मैं नहीं देखता सर नहीं उठाता हूँ। प्यारे दोस्तों, मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत के मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करना ज़रूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपकी फजीलत में बताई, उसके हम भी कायल हैं। हम इनकार नहीं कर सकते। हम हजरत अली को सिर्फ अली नहीं कहते, मौला अली कहते हैं। जबकि बाज़ लोगों को मौला अली कहने पर भी एतराज़ है, लेकिन ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला हैं। प्यारे दोस्तों, मौला किसे कहते हैं? मौला कहते हैं आका को, मौला सरदार को कहते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाने आलिशान है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह के नबी ने उनको मौला कह दिया है, तो हम सबको मौला कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि एक रिवायत ये भी बताती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ, सिर्फ ये लफ्ज नहीं बल्कि उसमें ये लफ्ज भी है कि अल्लाह और मैं जिसके मौला हैं, अली उसके मौला हैं। इसमें फिर पूरी कायनात आ गई, यानी सारे लोग उनको अपना सरदार बनाएं। प्यारे दोस्तों, नबुव्वत का मुकाम अपनी जगह है और विलायत का मुकाम अपनी जगह पर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौला कहा है
تو اس بات پر کچھ لوگ کہتے ہیں تو کیا پھر حضرت علی نبیوں کے بھی مولا ہیں؟ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لفظ عین یہ سورج کو بھی بولتے ہیں، گھٹنوں کو بھی بولتے ہیں اور آنکھ کو بھی بولتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے بھی مولا ہیں، تو کیا علی بھی نبیوں کے مولا ہیں؟ تو کہا ہاں ہیں، لیکن وہ اس طرح سے ہیں کہ مولا کا ایک معنی آقا ہوتا ہے اور ایک معنی دوست اور وزیر بھی ہوتا ہے اور ہمراز بھی ہوتا ہے۔ اس لیے مولا علی ہم سب کے لیے آقا کے معنی میں مولا ہیں اور نبیوں کے متعلق دوست اور وزیر کے معنی میں مولا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا ہے تو اس لیے دوستو مولا علی کہنے میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر سرکار سیدنا علی مرتضیٰ کے فضائل میں جو باتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ہاشمی نسب ہے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ میں سب سے پہلے ایمان لانے میں آپ کا اہم رول ہے، اس کے علاوہ ہجرت کرنے میں اور ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مواخات میں بھائی بننے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں اور ایک روایت میں 3 ہجری میں اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی علیہ السلام کے ساتھ فرمایا، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ دختر مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان بان والی وہ شہزادی حضرت علی کی دلہن بنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ارادہ تھا میں فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجوں۔ ان کے دلوں میں ارادہ تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نہ کسی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ پیغامات آئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو نکاح کے لیے ارادہ تھا لیکن میری حیثیت نہیں تھی، میرے پاس مال نہیں تھا، کیونکہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو اس وقت بہت غریبی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک یہودی کے باغیچے میں کام کرتے تھے اور دن بھر کام کرنے کے بعد وہ یہودی آپ کو صرف 2 کھجوریں دیا کرتا تھا اور وہ 2 کھجوریں لے کر گھر آتے اور انہی سے گزارا کرتے تھے۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہاتھ کیسے مانگتے؟ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور پوچھا، اے علی، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ میری بیٹی کو، فرمایا کہ جاؤ اور مہر کے پیسے ڈھونڈ کے لاؤ، مہر کے لیے کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب محنت کی اور جو کچھ آپ سے بن سکا اور کچھ چیزیں آپ نے بیچیں اور کچھ سامان گروی رکھا۔ اس طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کے لیے کچھ چاندی لے کر آئے اور اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مولا علی علیہ السلام کا نکاح ہوا اور تقریباً 9 مہینوں کے بعد رخصتی ہوئی۔ جس وقت رخصتی ہوئی اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نعمان کا مکان کرائے پر لیا ہوا تھا، جو ایک صحابی تھے۔
उस किराए वाले घर में जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई तो सिर्फ एक चारपाई थी, एक बिस्तर था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से एक चक्की लेकर आए थे, पानी का एक मशकीज़ा और 2 मिट्टी के बर्तन वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा साथ लेकर आई थीं, और एक चिराग जलाने के लिए था। इसके अलावा कुछ नहीं था। मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात की खवातीन की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार को इस हाल में रुखसत किया, क्योंकि दोस्तों ज़ाहिरी असबाब कुछ नहीं होते, दिल का तकवा सबसे बड़ी चीज है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ी दौलत भेजी थी वो हया, इफ़त और तकवा की दौलत थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तो इन चीजों की शहंशाह थीं। तकवा में आपकी मिसाल क्या हो सकती है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा जब मौला अली अलैहिस्सलाम के घर आई तो खुद फरमाती हैं कि मैंने अपने हाथों से इतना आटा पीसा है कि मेरे हाथों की चमड़ी यानी आपके हाथों की खाल छिल चुकी थी। वो बहुत मेहनत करती थीं, सारे काम अपने हाथों से ही अंजाम देती थीं। इस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम को सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद बनने का शरफ हासिल हुआ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राजी थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से ये भी फरमाया, ऐ अली, मैंने तुम्हें अपने जिगर का एक टुकड़ा दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने उनसे दुश्मनी की गोया के मुझसे दुश्मनी की। मौला अली अलैहिस्सलाम ने निहायत ही सादी जिंदगी गुजारी और आपने बहुत ज्यादा कोशिशों को नहीं पाला। मुख्तसर सी जिंदगी में आपने सब्र किया, और आपको बीवी भी ऐसी मिली जो कनात की बादशाह है। उनको जो मिला उस पर सब्र कर लिया। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिंदगी में कभी भी फातिमा ने मुझसे किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं की, बल्कि जब हमें गुलाम की जरूरत थी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहकर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि जाओ फातिमा, एक गुलाम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग कर ले आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको एक एक गुलाम बांट रहे हैं। ये ख्वाहिश मौला अली अलैहिस्सलाम की थी, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के कहने पर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी ये गुलाम दे दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गुलाम नहीं दिया और कहा, फातिमा जब थक जाओ तो रात के वक्त 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। तुम्हारी थकान के लिए ये काफी हो जाएगा। लिहाजा आप घर लौटें और इस पर भी सब्र किया। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर की ये कैफियत थी कि बहुत ज्यादा ठाट बाट नहीं था, बल्कि अहले बैत का ये घराना तो ऐसा है कि एक बार हसनैन करीमैन बीमार हुए तो उनकी कनीजा जिसका नाम फिजा था उसने मन्नत कर ली कि ऐ अल्लाह, अगर बच्चे ठीक हो जाएं तो हम सब घर वाले मिलकर 3 रोजे रखेंगे। लिहाजा बच्चों को शिफा मिल गई, बच्चे ठीक हो गए। तब फिजा ने मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि मैंने बच्चों के मुताल्लिक मन्नत की थी और बच्चे ठीक हो गए। तो घर वालों ने कहा, ठीक है, आज से हम 3 दिन के रोजे रखेंगे। रोजा रखते और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजे की हालत में काम पर जाते। काम से वापस आए तो आपको मजदूरी इतनी मिली कि सिर्फ आटा मिल सका, जिससे कि सिर्फ रोटियां बन सकती थीं। 5 रोटियां बनी, सिर्फ इतना ही आटा मिला। लिहाजा रोटियां जब बनी और इफ्तार का वक्त हुआ तो एक मिस्कीन घर आया और उसने आवाज लगाई और कहा कि अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, तुम हर एक को देते हो, मैं भूखा हूँ, मुझे भी अल्लाह के नाम पर खिलाओ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ये 5 रोटियां उसको उठाकर दे दो, क्योंकि अल्लाह के नाम पर उसने मांगा है। और फिर घर वालों ने सिर्फ पानी पीकर इफ्तार किया। दूसरे दिन भी मन्नत का रोजा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम
اسی حالت میں کام پر گئے، اسی حال میں باغیچے کا کام کیا۔ شام کو جو آج مزدوری ملی اس سے بھی آٹا خریدا، آج پھر روٹیاں بنائی گئیں۔ سبھی لوگ 2 دن کے بھوکے تھے۔ جب روٹیاں بن کر تیار ہوئیں تو ایک یتیم بچہ باہر کھڑا تھا۔ اس نے آواز لگائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں نے سنا ہے کہ جو بھی مانگتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس بچے کو دے دیں۔ تیسرا روزہ تھا اور منت کے روزے تھے، روزہ چھوڑنا بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی علیہ السلام اسی حالت میں تیسرے دن بھی کام پر گئے۔ پیارے دوستو، کون کر سکتا ہے ایسا سوائے مولا علی شیر خدا کے؟ تیسرے دن جب آپ مزدوری کر کے آٹا لے کر آئے، آج بھی روٹیاں بنی تھیں، لیکن آج ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی باہر کھڑا تھا۔ بولا، بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میں نے سوچا کسی اور کے گھر کیوں جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آؤں، میں نے سنا ہے یہاں منگتوں کو کھلایا جاتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹیاں اٹھائیں اور اس قیدی کو دے دی۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ فاطمہ کم سے کم 1 روٹی تو روک لیتی یا 2 روٹیاں تو رکھ لیتی، باقی دے دیتی، لیکن نہیں، مولا علی علیہ السلام بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خیرات پر راضی تھے، اور بچوں کو بھی بچپن سے ہی ایسی ہی تربیت دی گئی تھی۔ تیسرا روزہ تھا اور آج بھی روٹیاں اٹھا کر دے دی گئی تھیں۔ پیارے دوستو، یہ اہل بیت کے لیے کڑا امتحان تھا۔ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حسنین کریمین ایک طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی کا پیٹ پیٹھ سے لگ رہا ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمر جھکی ہوئی ہے، کسی سے آواز نہیں نکل رہی۔ فضا کو دیکھا، ان کی آنکھیں اندر دھس رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پیارے دوستو، اگر آج کے دور میں ایسا ہوتا تو بیٹی باپ سے شکایت کر کے روتی، کہتی، ابا جان آپ نے میری شادی کہاں کر دی ہے، یہاں کھانے کو روٹی تک میسر نہیں ہے، 3 دنوں سے فاقہ ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا صبر کا پہاڑ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پوچھا لیکن کسی سے کچھ جواب نہیں ملا۔ اسی وقت جبریل امین آیت کریمہ لے کر اتر آئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ دہر پارہ 29، جس کا مفہوم یہ ہے، اے محبوب، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے رب کی محبت میں کبھی مسکین کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو تو کبھی قیدی کو۔ اور پھر جنت کا دسترخوان اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیا اور فرمایا، مبارک ہو میرے گھر والوں، تم کامیاب ہو گئے۔ رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا، آنے والا نہ مسکین تھا، نہ یتیم تھا اور نہ ہی قیدی تھا۔ وہ شکلیں تو ان کی تھیں لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا امتحان لے رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے کہ آپ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیں گے تب تیر نکالیں گے، کیونکہ آپ بڑا تڑپیں گے۔ مولا علی علیہ السلام بولے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو تیر نکال لینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور ایک طرف آپ کا حال یہ ہے کہ ایک مانگنے والا فقیر مسجد میں آیا، سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں تھے۔ نماز میں ہی رب کے بندے کا خیال آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فقیر نے پکارا تو میں نے سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہیں کیا، میرے پاس ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کے جانب پھینک دی۔ وہ سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بولا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں مسجد گیا تھا تو سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ نہیں ملا،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां अली नहीं थे? वो बोला, हुजूर हाँ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ मिला? वो बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी। प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की बचपन से तरबियत फरमाई, तो जाहिर है कि जिंदगी गुजारने के उसूल भी उन्होंने ही सिखाए थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स के लिए कभी कोई चीज नहीं की। प्यारे दोस्तों, खैबर का वाकया बड़ा ही मशहूर है। दरअसल खैबर यहूदियों का इलाका था। वहाँ यहूदियों के बहुत सारे किले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों के साथ वहाँ का मुहासरा किया। उन किलों में रहकर यहूदी मदीने वालों के खिलाफ साजिशें रचा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे। 7 दिन तक मुहासरा रहा। फिर जंग शुरू हुई, मगर जंग ऐसी होती कि सुबह शुरू होती और शाम को खत्म होती, लेकिन कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को जमा किया और फरमाया कि कल मैं ये इस्लामी परचम ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल खूब मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। सारे सहाबा रात भर जागते रहे और यही सोचते रहे कि वो झंडा किसको मिलेगा। बहरहाल सुबह हुई, सब जमा हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे को देखा। उस मजमे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? बताया गया कि वो बीमार हैं, उन्हें आसूदा चश्म हुआ है, उनकी आंख में तकलीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनको बुलाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम उसी हालत में आए। उनको बुखार भी था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया और झंडा उनके हाथ में पकड़ा दिया और फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फाते रखें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसी हालत में झंडे को उठाया और उठकर चल दिए। जब सहाबा ने मौला अली अलैहिस्सलाम के जोश को देखा तो सब के सब पुरजोश हो गए। मुकाबला शुरू हो गया। जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहूदियों का एक बड़ा रईस था, उसका नाम मरहब था। वो बहुत ताकतवर था। वो सामने आया। उसका पूरा जिस्म लोहे के कपड़ों से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसकी टोपी तक लोहे की थी। वो कहने लगा, मेरे मुकाबले में कौन आएगा? तुम्हें पता है मेरे घर के आसपास भी कोई नहीं भटकता, इतना खौफ है मेरा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में कहा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है। हैदर कर्रार का मतलब होता है पछाड़ का माहिर शेर। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने मरहब के मुकाबले में तलवार उठाई। मुकाबला थोड़ी देर का हुआ, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम के पास जुल्फ़िकार हैदरी थी। जुल्फ़िकार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की हुई उस तलवार से जब आप अलैहिस्सलाम ने वार किया तो वो लोहे को काटती हुई ऐसे गई कि मरहब का सर आसमान में उड़ रहा था। और फिर जब उसकी लाश जमीन में ढेर हो गई तो सारे यहूदियों में खौफ फैल गया। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कुव्वत ये थी कि किले के बड़े बड़े दरवाजे बंद थे। मौला अली अलैहिस्सलाम एक हाथ से तलवार चलाते रहे और सहाबा से कहा कि तुम किले के अंदर दाखिल हो जाओ। सहाबा ने कहा, दरवाजे बंद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम खैबर का एक फाटक यानी बड़ा दरवाजा जो पूरे लोहे का बना हुआ था, जिसका वजन इतना था कि 40 सहाबा मिलकर उठाते थे तो उठ नहीं पाता था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने सीधे हाथ से उसे अकेले उठाया और उठाकर खड़े रहे और यहाँ तक कि 600 सहाबा अंदर किले में दाखिल हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस दरवाजे को उठाकर कई गज दूर फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब फातह खैबर है। उसी शाम को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इस फतह का सेहरा मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पहुंचता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ही फतह की बशारत दे दी थी। प्यारे दोस्तों,
सहाबा की ताकत का ये आलम है कि उस जमाने में जो ताकतवर थे, आज के जमाने के 100 नहीं 1000 लोगों की ताकत उनके पास होती थी। मदीने तैयबा में कुछ बुजुर्ग हैं जिनके यहाँ आज भी सहाबा की तलवारें रखी हुई हैं। अगर आज के बॉडी बिल्डर वहां जाकर उन तलवारों को उठाते हैं तो वो तलवार उनके दोनों हाथों से नहीं उठती, लेकिन सहाबा उन तलवारों को एक हाथ से हवाओं में लहराते थे। तो ये सहाबा इकराम की ताकत का हाल था। और मौला अली अलैहिस्सलाम उस जमाने के 40 मर्दों की ताकत तन्हा रखते थे। शेर खुदा का लक़ब उनको ऐसे ही नहीं मिला था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बात अहम है। अक्सर ऐसा होता है कि जब अल्लाह तबारक ताला नियामतें किसी को अता फरमाता है तो फिर वो बंदा दो हालातों से खाली नहीं होता। या तो रब तबारक ताला का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है, और या फिर गुरूर और तकब्बुर में इतराने वाला बन जाता है। क्योंकि माल भी गुरूर लाता है और जिस्मानी ताकत भी गुरूर लाती है। या जब कोई ओहदा मनसब किसी को मिलता है तो वो भी गुरूर पैदा कर देता है। ये तीन चीजें इंसान को घमंड की तरफ ले जाती हैं। ये बहुत आजमाइश का वक्त होता है। अगर किसी के अंदर ज्यादा ताकत आ गई और फिर वो अपने हाथ को बचा ले गया तो वो दुनिया का अजीम पहलवान है। यहाँ तो लोग कमजोरों पर अपनी ताकत आजमाते फिरते हैं, लेकिन याद रखो, जब ताकत आ जाए तो तुम ताकत का गुरूर मत लाना, क्योंकि जिस्म सड़ जाएगा और कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन जाएगा। जब कब्र में तुम्हारे इसी ताकतवर जिस्म को रखा जाएगा, कान से नाक से हर जगह से इसी जिस्म में कीड़े दाखिल होंगे और तुम हाथ तक नहीं हिला सकोगे। अल्लाह इस कदर तुम्हें बेबस बना देगा। इसलिए अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर कभी मत आने देना। मौला अली अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि एक रोज बाजार में जा रहे थे। एक औरत रो रही थी। वो एक काम करने वाली उस जमाने की कनीज थी। मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त के खलीफा थे। आपके पास मनसब भी था और ताकत भी थी। आप अलैहिस्सलाम उस औरत के करीब गए और उससे पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? वो बोली, मेरे मालिक ने खजूर लाने के लिए 2 दिरहम दिए थे। मैंने इस शख्स से खजूर लिए और खजूर लेकर अपने मालिक को दे दिए, लेकिन मेरे मालिक को वो खजूर पसंद नहीं आए और उसने वो खजूर लौटा दिए। अब मैं लेकर आई हूँ तो ये दुकानदार वापस नहीं ले रहा और मेरे पैसे नहीं दे रहा है। अगर मैं ऐसे ही वापस जाती हूँ तो मेरा मालिक मुझे दुर्रे मारेगा। मैं दिरहम कहाँ से लाऊं? मैं बहुत गरीब हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम इस मसले में पड़े और दुकानदार से बोले कि इस कनीज को इसके पैसे वापस दे दो। तेरी खजूरें सही सलामत हैं, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और ये वापस ले आई है, लिहाजा इनको वापस ले लो और इसके पैसे वापस दे दो। उस दुकानदार ने आपको जोरदार धक्का मारा, यहाँ तक कि गली के बाहर ले गया और बोला, तुम होते कौन हो बीच में पड़ने वाले? वहां मौजूद लोगों ने कहा, ऐ नादान, तुझे मालूम है तूने किसको धक्का मारा है? ये खलीफाए वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। उस दुकानदार को ये नहीं पता था। वो घबरा गया, सहम गया और सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा? वो आया और उसने उस कनीज से खजूरें वापस ली और उसको पैसे दे दिए और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। बोला, मुझे मालूम नहीं था, मैंने आपको धक्का मारा, मुझे माफ कर दें, मुझसे राजी हो जाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले उस कनीज से पूछो, अगर वो राजी है तो मैं भी राजी हूँ। मेरे नफ्स का कोई मामला नहीं है, तू हकदारों का हक अदा कर दे, मैं तुझसे राजी हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली अलैहिस्सलाम चाहते तो उस दुकानदार से अपनी बेइज्जती का बदला ले लेते कि तूने मुझे हाथ लगाया कैसे, क्योंकि आप खलीफा भी थे, अमीरुल मोमिनीन भी थे और एक ताकतवर इंसान भी थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग लड़ते हुए एक काफिर को जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर बैठ गए। तलवार से उसको काटने ही वाले थे कि उसने आपके मुंह पर थूक दिया।
मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलवार छोड़ दी और उसको आजाद कर दिया और बोले, जा, अब तुझको नहीं मारूंगा। वो काफिर हैरत में पड़ गया, सोचने लगा कि इनका गुस्सा तो डबल हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो इनके मुंह पर थूक दिया। इन्हें मुझे तो और भी बेदर्दी से मारना चाहिए था, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम बोले, ऐ काफिर सुन ले, मैं जिहाद भी करता हूँ तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन जब तूने मुझ पर थूक दिया तो इसमें मेरा नफ्स भी शामिल हो गया। अगर मैं तुझे मार देता तो दुनिया कहती कि अली ने अपना बदला लेने के लिए उसकी गर्दन काट दी। मैं बदले के लिए कत्ल नहीं करना चाहता। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की ताकत का सही इस्तेमाल था। प्यारे दोस्तों, एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िरा चोरी हो गई। ज़िरा यानी लिबास जो जंगों में पहना जाता था, वो चोरी हो गई और एक यहूदी के हाथ में चली गई। यहूदी बोला, ये मेरी है। यहाँ तक नौबत आ गई कि मुकद्दमा काजी के पास पहुंच गया। काजी की अदालत में यहूदी को भी बुलाया गया और मौला अली अलैहिस्सलाम को भी बुलाया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि ये ज़िरा मेरी है। यहूदी ने कहा कि इनके पास गवाह कौन है, सबूत क्या है कि ये ज़िरा इनकी है। काजी ने पूछा, ऐ अली, आपके पास कोई गवाह है? हाँ, गवाह है। पूछा, कौन गवाह है, किसने देखा है? आप अलैहिस्सलाम बोले, मेरे बेटे हसन और हुसैन हैं। दोनों को तलब किया, वो दोनों अदालत में आए। हजरत अली अलैहिस्सलाम की गवाही दी, लेकिन काजी ने ये कहकर के इनकार कर दिया कि इस्लाम के निज़ाम में बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं होगी। हसनैन करीमैन की गवाही को काजी ने कबूल नहीं किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनके अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। तो फिर काजी ने कहा, ऐ अली, फिर तो ये ज़िरा यहूदी की है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे ये फैसला मंजूर है, क्योंकि मैं साबित नहीं कर सका कि ये ज़िरा मेरी है, इसलिए मुझे ये फैसला मंजूर है। यहूदी ये सब देख रहा था। उसे तो मालूम था कि ये ज़िरा चोरी की है। उसने इस्लाम का ये जबरदस्त निज़ाम अदल देखा और उसी वक्त पुकार के कहा, मुझे मालूम नहीं था कि फैसले ऐसे भी होते हैं कि एक तरफ वक्त का खलीफा खड़ा है, अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं और काजी उन्हें भी नहीं देख रहे हैं। काजी के सामने इस्लाम है और कवानीन इस्लाम है। यहूदी ने कहा, ऐ काजी इस्लाम, मैं गवाही देता हूँ कि ये ज़िरा अली की ही थी और साथ ही ये भी गवाही देता हूँ कि इस्लाम सच्चा मजहब है। वो यहूदी ईमान ले आया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे लिए कुछ अलग खुसूसियात होनी चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं था। हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत तकरीबन 4.5 साल तक चली। खिलाफत के इस वक्त को आप अलैहिस्सलाम ने पूरे अदलो इंसाफ से भर दिया था। अदल में तो आप ज़माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मशहूर थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बार आपको यमन का काजी बनाकर भेजा गया। यमन में कई लोग गए, लेकिन उन लोगों को मुतासिर नहीं कर पाए। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम जब गए तो यमन के बड़े बड़े कबीले इस्लाम में आ गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक बार यमन में एक मुकदमा आया। ये एक अजीब मुकदमा था। यमन वालों ने कहा, शेर को पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। तो लोग वहां पहुंचे तो वहां पहले ही एक शेर गिरा हुआ था। कुछ लोग ऐसे थे जो उस गड्ढे के करीब गए तो एक आदमी का पैर फिसल गया और गिरते गिरते उसने दूसरे शख्स का पैर पकड़ लिया और उसने भी तीसरे का पैर पकड़ लिया और उसने भी चौथे का पैर पकड़ लिया। इस तरह चारों लोग गड्ढे में गिर गए और शेर ने चारों को जख्मी किया और फिर उन्हें मार डाला। अब उन चारों लोगों के जो घर वाले थे वो भड़क गए। वो बोले, हमें बदला चाहिए, लेकिन बदला किससे लें? इसमें तो चारों के चारों मर चुके थे। जो पहले गिरने वाला शख्स था, जिसने दूसरे शख्स के पैर पकड़े थे, तो दूसरे शख्स के घर वाले पहले शख्स के घर वालों से बदला लेना चाहते थे। वो बोले, उसने हमारे बेटे के पैर पकड़े थे, इसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया। और तीसरे शख्स के घर वाले दूसरे शख्स के घर वालों से बदला चाहते थे।
क्योंकि दूसरे शख्स ने तीसरे शख्स के पैर पकड़े हुए थे। इस तरह चारों खानदान में लड़ाइयां होने लगी। आखिरकार ये मसला हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सारा मामला पूछा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में है कि जिसका कत्ल किया गया है उसके घर वालों को ये इख्तियार होता है कि उनसे काजी यानी कि जज पूछता है कि वो अगर चाहें तो जान के बदले जान ले लें और अगर चाहें तो दियत ले लें। जिसने कत्ल किया है उससे पैसे ले लें। लेकिन ये मसला तो अलग था, यहाँ तो सारे मर चुके थे, तो दियत कौन देता? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसने गड्ढा खोदा था वो दियत देगा। उसको बुलाया गया और कहा कि तूने ये गड्ढा खोदा इसलिए तू दियत देगा, क्योंकि तेरे खोदे हुए गड्ढे में ही सारे लोग गिरे और उनकी जान चली गई। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने गड्ढा खोदने वाले से भी इस तरह की दियत दिलाई कि एक आदमी को तुम आधी दियत दोगे, एक को 1/3 दोगे, एक को 1/4 दोगे और एक को पूरी दोगे। यानी जैसे कि एक को 1 लाख दोगे, एक को 50,000 दोगे और तीसरे को 1/3 यानी 25,000 दोगे और एक को 1/4 दोगे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा फैसला किया जो सबसे पहले गिरा था उसको 1/4 दो, इसलिए क्योंकि उसने दूसरे को भी पकड़ा था। दूसरे वाले को उससे थोड़ा ज्यादा दो, इसी तरह से तीसरे को उससे ज्यादा। लेकिन जो लास्ट में गिरा था उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको पूरे 1 लाख दो। लोगों ने कहा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यह कैसा फैसला किया है। लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि अली ने वही फैसला किया है कि जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है। इस तरह से दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम के फैसले ज़माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मशहूर थे। ये हिकमत और दानाई गैब से अता की हुई थी। हर सवाल का जवाब कुरान पाक से दिया करते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मौला अली अलैहिस्सलाम को ये लक़ब दे दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो फिर बात ही क्या रह गई। मौला अली अलैहिस्सलाम हर मसले का हल कुरान से किया करते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो मसाइल के फैसले किए वो आपकी अक्लमंदी को साबित करते हैं। बल्कि हाजिर जवाबी भी आपकी ऐसी थी कि एक यहूदी ने आपसे मजाक किया। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी बहुत घनी थी और उस यहूदी की दाढ़ी बहुत छोटी सी थी, बहुत कम बाल थे। वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, ऐ अली, मैंने सुना है कि तुम हर चीज का जवाब कुरान से देते हो, तो मेरी दाढ़ी और आपकी दाढ़ी के बारे में भी कुरान में कुछ लिखा है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, क्यों नहीं, कुरान में है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसकी जमीन अच्छी होती है उसकी फसल भी अच्छी होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम का ये जवाब सिर्फ उस यहूदी के लिए था, किसी और के लिए नहीं। आप अलैहिस्सलाम बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नेकियों की फसल अच्छी की है। ये मुंह तोड़ जवाब था उन लोगों के लिए जो मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाम, मर्तबे और उनके इल्म तक कोई नहीं पहुंच सकता। एक मौके पे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठूं तो 70 ऊंटों को बोझल कर सकता हूं। मतलब कि तफसीर और किताबें इतनी हो जाएंगी कि 70 ऊंटों पर रखनी पड़ जाएंगी, सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर, बाकी कुरान की नहीं। आप अलैहिस्सलाम के पास वो इल्म था कि आप इल्म का समंदर हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो परवरदा थे जो खानवादाए नबूवत में पले और बड़े हुए। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के जो आपके मामलात चले वो बहुत ही बेहतरीन थे, लेकिन कुछ खुराफात, कुछ इंतशार उनके ज़माने में ऐसे हुए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का मुतालबा खून बहा मांगने के लिए कुछ सहाबा उठे, कहने लगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का बदला लिया जाए। मदीने में भी आवाज़ें उठीं, मक्के में भी आवाज़ें उठीं और मुल्क शाम में भी आवाज़ें उठीं। इसी वजह से 2 जंगें हो गईं।
जंग जमल और जंग सफैन, जिसकी वजह से कुछ सहाबा फितने का शिकार हो गए। वही सबाई फितना जिसे अब्दुल्ला बिन सबा ने खड़ा किया था। उन्होंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लेने के लिए जगह जगह हंगामे किए, प्रोटेस्ट किए। मौला अली अलैहिस्सलाम का कहना था, ये बदला लेने का वक्त नहीं है। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते, ना ही पहचानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन इस्लाम का मजाक बनाए हुए हैं। उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम का जो मुकाबला था वो अंदर से भी था और बाहर के लोगों से भी था। कुछ लोग खारजी हो गए। खारजी वो लोग हुए जो मौला अली अलैहिस्सलाम को काफिर कहते थे। उस जमाने में एक जमात निकली जो ख्वारिज कहलाती थी। उनसे भी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जिहाद किया और उनको मार के भगाया। जंग नहरवान इसी जंग का नाम है। खारजी एक जमात निकली, फिर शिया एक जमात निकली। इन तमाम फितनों में यहूदियों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की। मौला अली अलैहिस्सलाम ने 63 साल की उम्र पाई थी। वो एक छड़ी पकड़े हुए थे। कूफा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में हजरत अली अलैहिस्सलाम लोगों को जगाते जगाते आए। हर दरवाजे पर दस्तक देते और कहते, उठो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक खबीस खारजी बदबख्त खंजर छुपाए हुए खड़ा था। उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम को छुपकर धोखे से खंजर मारा। मस्जिद में चीख पुकार मच गई। मौला अली अलैहिस्सलाम जख्मी थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बोले, ऐ लोगों, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी खून से भर गई। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि एक दफा मैं शदीद बीमार हो गया, मैं उठ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी करने आए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं मैं बच पाऊंगा या नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। लिहाजा जब जामा उन पर खंजर से हमला किया गया तो मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने चेहरा झुकाकर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है। जामा मस्जिद कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा और इस्लाम की तारीख का वो शख्स जिसने अपने बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा दीन इस्लाम की खिदमत में गुजार दिया। जाते जाते इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब बुलाया और वसीयत कर गए कि बेटा, जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए और मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे। मौला अली अलैहिस्सलाम खातिमुल खुलफा थे। उन पर खिलाफत इस्लामिया ख़त्म हुई और रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख को दारुल खिलाफत कूफा में शहीद हो गए। यूं समझो कि इल्म का एक पहाड़ एक सूरज गुरूब हो गया, आसमान विलायत का एक चमकता हुआ चांद गुरूब हो गया। जिस दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ उसके एक दिन पहले आपके बेटे बताते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने खजाने का सारा माल तकसीम कर दिया और जिस जगह माल खजाना होता था वहां 2 रकत नफिल पढ़कर कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुंचा दी। जिंदगी दीन के नाम करके खुदा के शेर रुखसत हुए। 21 रमजानुल मुबारक की शाम ढली और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीने में कोहराम मच गया। बगदाद की गलियां सूनी हो गईं। कूफे के लोग तड़प गए। मक्का के लोगों ने भी दुआएं मांगी। वो सूरज इस अंदाज से दुनिया से गया कि उसकी रोशनी कयामत तक बाकी रहेगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम आज खुददारी की अलामत है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम आज ईमान की अलामत है। इमाम अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं और रूहें बेदार होती हैं। कूफा की सरजमीन पर यह हौलनाक हादसा पेश आया। मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, लेकिन हाल ये था कि खारिजियों का फसाद बढ़ा हुआ था। यहाँ तक कि
आपकी लाश को भी छुपाना पड़ा। उस वक्त मस्जिद में जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने आपकी लाश को छुपाया। यहाँ तक कि एक रिवायत में आता है कि एक ऊंट पे आपकी लाश को रखकर जंगलों की तरफ भेज दिया गया और फिर वो ऊंट आपकी लाश मुबारका को लेकर गायब हो गया। आपकी लाश मुबारका को छुपाने की वजह ये थी कि खारिजी आपकी लाश के साथ भी बेहुरमती करने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ रिवायात में मिलता है कि वो ऊंट एक जगह पर बैठा हुआ दिखाई दिया। आपका जिस्म मुबारक उसी तरह तरोताज़ा था। फिर जो करीब के लोग थे उन लोगों ने उठाया और फिर उसी जगह पर दफन किया जिस जगह को आज नजफ अशरफ कहा जाता है। नजफ इराक का एक इलाका है जहां मौला अली शेर खुदा दफन है। लेकिन हम मौला अली के चाहने वालों का ये अकीदा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जहां पर भी दफन हो हमारी मोहब्बत उनके साथ है। मौला अली अलैहिस्सलाम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आपको अल्लाह ताला ने जो कमालात अता किए थे, कुव्वत के एतबार से, इल्म के एतबार से और तक़वे के एतबार से, हर चीज में आप बेमिसाल बादशाह थे। आपने तकवा और तहारत पर एक ऐसी मिसाल कायम की। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए आते थे तो आपका रंग पीला पड़ जाता था। आजान सुनते ही पूरा चेहरा जर्द हो जाता था और लोग देखते कि उनके जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। आजान की आवाज से ये खौफ का आलम था। लोग पूछते कि आप आजान और नमाज के वक्त ऐसे क्यों बदल जाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते लोग बादशाहों के सामने खड़े होने से डरते हैं तो मैं बादशाह आजम के सामने खड़े होने से खौफ ना करूं। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाने का वक्त होता है, इसलिए मुझे कपकपी तारी हो जाती है। रब तबारक ताला मुझे किस कैफियत में देख रहा है। आपका खौफ भी ऐसा था। एक बार कब्रिस्तान में गए और जोर से सलाम किया। आपके साथ सईद इब्ने मसय्यब थे। आपने कहा कि हमने देखा है हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जोर से सलाम किया। थोड़ी देर के बाद कब्रों के पास कान लगा के खड़े रहे। हजरत सईद कहते हैं कि मुझे लगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र वालों से कुछ सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने हजरत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो दाढ़ी पूरी आंसुओं से तर थी, इस कदर रो रहे थे। तो हमने पूछा कि आपने कब्र वालों के पास ऐसा क्या देखा। आप अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने कब्र वालों को सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि ऐ कब्र वालों तुम्हारी क्या हालत है। तो कब्र वालों ने कहा, ऐ अली हमारी हालत ना पूछो। हमारे वो चेहरे जिन्हें हम घंटों आईनों में सजाया करते थे, अल्लाह ताला ने इन चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए हैं। हमारे बालों में पीप आ चुके हैं, हमारी नाक सड़ चुकी है, हमारे दांतों पर कीड़े मकोड़े लगा दिए गए हैं, हमारा पेट फटकर बदबू पैदा कर रहा है। रब ताला ने हमारे पूरे जिस्मों को कीड़ों की ग़िज़ा बना दिया है। वो बयान करते जा रहे थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ सईद उनकी बातें ऐसी दर्दनाक थीं कि अगर देखने को मिल जाए तो दुनिया में कोई जिंदा भी नहीं रहेगा, वो हैबत से मर जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम कब्र को याद करके कसरत से रोया करते थे। प्यारे दोस्तों, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी हो, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत का सरदार कहा हो, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह कहा, अल्लाह का शेर कहा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी निकाह में दी, वो अली कब्र से डरते हैं और एक हम हैं। हमारे अंदर तो खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे इतराते हुए गुरूर और घमंड से हम नाचते हैं। नमाजें तो इतनी हमारी छूटी हुई हैं कि जिनका अंदाजा ही नहीं। प्यारे दोस्तों, मौला अली शेर खुदा की पूरी जिंदगी पाक में एक भी नमाज कज़ा नहीं थी। वो एक नमाज जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जानों पर
सर रखकर सो रहे थे। जब सूरज डूबा तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को रोना आ गया। हाय, मेरी जिंदगी में पहली नमाज जा रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़कर आराम कर रहे थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी और सूरज डूब रहा था, तो रोना आ गया और इतना रोए कि आपके आंसू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिर गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम को किसी ने जंगों में रोते नहीं देखा। गुर्बत की वजह से कभी घर में नहीं रोए। चक्की पीसती हुई हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकलीफ को देखकर नहीं रोते। लेकिन आज मौला अली अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आए तो वो नमाज की कज़ा होने की वजह से आए कि मेरी नमाज चली गई। जब आंसू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से रोने की वजह पूछी तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वो नमाज भी ज़ाया नहीं होने दी, क्योंकि वो नमाज मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ज़ा की थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त सूरज को इशारा फरमाया और वो डूबा हुआ सूरज असर के मुकाम पर आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को अली मुर्तज़ा के लिए, शेर खुदा के लिए वापस पलटा दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सच्चे जानशीन के तक़वे पर कुर्बान जाओ। प्यारे दोस्तों, हमारे पास अमल नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हमारे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है। हमारे पास तस्बीह और तिलावतें ज्यादा नहीं हैं। हमारी पेशानी तो सजदों को तरस गई है। कुछ ना होते हुए भी हम इतराते फिरते हैं। हमें इस आदत में तब्दीली लानी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि सब कुछ कर लेने के बाद भी हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो फिर ये कब्र में पता चलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बुजुर्गों ने फरमाया, कब्र में जाने वाला एक बंदा ऐसा भी होगा कि जब मुनकर नकीर उससे तीसरा सवाल कर रहे होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा और वो उससे पूछेंगे कि इनके बारे में तू क्या कहता था। मेरे दोस्तों, हम तो अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बताते हैं, और हम सोचते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही हम कह देंगे कि ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन नहीं, कब्र में बदअमली के साथ जाने के बाद क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार मेरे चेहरे की तरफ मत देखना। बुजुर्गों ने फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे कि मेरे चेहरे की तरफ मत देखना, कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद कहाँ था, तुझे दूसरों का चेहरा पसंद था। प्यारे दोस्तों, कब्र में उस वक्त अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मोड़ लें तो फिर मदद के लिए किसको बुलाओगे, किसको पुकारोगे? इसलिए हम सबको अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत है। नमाज इतनी तर्क मत करो कि तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ दी जाए और तुम्हारी नमाजें वैसे ही बाकी रह जाएं। प्यारे दोस्तों, आप इस बात को तय करें कि क़यामत के दिन जिसको अली अलैहिस्सलाम के साथ उठना है, उसे नमाज का दामन छोड़ना नहीं है, इसलिए कि अली अलैहिस्सलाम उसके साथ होंगे जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिसे अजीज हैं वो देखेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर शख्स उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता था। अगर आप दुनिया में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अलैहिस्सलाम, तो यकीनन जब तुम उठोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे इर्द गिर्द यही नुफूसे कुदसिया नजर आएंगे। लेकिन मोहब्बत सिर्फ जुबान की नहीं, मोहब्बत तुम्हारे जिस्म पर जाहिर होनी चाहिए। हम ऐसे बने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखें तो खुश हो जाएं। प्यारे दोस्तों, इस फिक्र को अपने अंदर पैदा करो।
यकीनन कामयाबी हमारे साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत हमारे साथ है। मौला अली अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने शहीद किया वो खारिजी थे, उन पर अल्लाह की लाखों लानत हो। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम के गम में हम मातम नहीं करते। मातम मनाने वाले कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है, हम तो हुसैन का मातम करते हैं। लेकिन याद रखो, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का कभी हुक्म नहीं दिया और ना ही अहले बैत ने कभी इस बात का हुक्म दिया। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, ये था वाक़या मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।